खबरों के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बावन टैंकर बंद कर देने के प्रतिवाद में राजबंद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गेट के समक्ष टैंकर ट्रक एसोसिएशन ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राजबंद टैंकर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन द्वारा कांकसर राजबंद के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गेट के सामने प्रदर्शन किया। पिछले 7 महीनों में 52 टैंकर बंद किए गए हैं। इन टैंकरों को चलाकर बहुत से लोग अपना जीवन यापन करते थे। उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन टैंकरों को तुरंत चालू करने की मांग को लेकर लिविंग टैंकर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने धरना शुरू कर दिया। टैंकर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के मालिकों ने शिकायत की है कि केंद्र सरकार के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधन अधिकारियों की उदासीनता के कारण टैंकर बंद कर दिए गए थे। राजबंद टैंकर ट्रक मालिक संघ ने इन टैंकरों को दोबारा नहीं लेने पर भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। রেট আছে সেই ওই 520 টাকায় চলে যাচ্ছে সারাটা জীবন, বাড়ছে না, খালি খেয়ে নিচ্ছে সব। কতজন আছেন শ্রমিক? অনেকগুলো, কতগুলো আছে? 150 জন আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইরকম করেই করি। ওই লোটেশনে কাজ, কোনো রেট নাই, কিছু নাই, গরুর মতন খাটতে হয়। অনেকটা সমস্যায় পড়ে আছি স্যার, সংসারই চলছে নাই। 5 দিন 7 দিন কাজ, তাতে রেটও কম, কিছুই করা যাচ্ছে নাই। তার দায়ী হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট। আমরা অনশন করেই যাবো ওইখানে। হ্যাঁ আমরা অনশন করেই যাবো। আমার নাম হচ্ছে লক্ষ্মীকান্ত রায়। হ্যাঁ কাজ করেই খায়। আমাদের যে নতুন টেন্ডার হয়েছে, এইখানে আমরা রাজবাঁধ আইওসিলে যারা গাড়ি চালিয়ে খেতাম, সেখান থেকে আমরা এখান থেকে প্রায় 40 জন মালিক ছিটকে গেছি। তা সেই গাড়িগুলি আইওসির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে টেন্ডারটা পরই আমরা সেই গাড়িগুলি চালু করব, কিন্তু আজকে 7 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কিন্তু তবু এখনও সেই গাড়ি কিন্তু চালু আইওসিলে করেনি। শুধুমাত্র অজুহাত দেখাচ্ছে। এর জন্যই আমাদের এই বিক্ষোভ আন্দোলন। কতজন আছেন মালিক? আমরা আছি গোটা 40-50 জন মালিক এখানে আছি। এই গাড়ি বাদ যাওয়া গাড়ি মালিক। একটা গাফিলতি, আসলে গাফিলতি বলতে এবার তো পুরোপুরি সেন্ট্রাল যে ব্যাপারটা করেছে। আজকে দেখুন, আমরা যখন গাড়ি চালাতাম এর আগের টেন্ডারে, তখন আমরা যে রেটটা পেতাম তার থেকে একদম রেট অনেক হাফ করে দিয়েছে বলা চলে। ঠিক আছে, সমস্ত তেলের দাম বেড়েছে, সব কিছুর দাম বেড়েছে, অথচ আইওসিলের রেটটা কমে গেছে। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে তারা টেন্ডার করেছে। সেই টেন্ডারটাকে তারা তাদের কিছু মাফিয়া ছিল, সেই মাফিয়া দিয়ে টেন্ডারটি করিয়ে দিয়ে এখন তারা চুপচাপ বসে আছে। আর বেশ কিছু বেকার ছেলে আজকে নিঃস্ব হয়ে গেছে, পথে বসতে বাধ্য হয়েছে। পরেও যদি আপনাদের যদি দাবি যদি না, তাহলে এবার আমরা অনশনে বসতে বাধ্য হবো। এখন এই বিক্ষোভ আন্দোলন করছি, এরপর তারা যদি কিছু না করে গেটের সামনে আমরা এই অনশনে বসবো। কি নাম আপনার? আমার নাম সুনীল ইসলাম। আপনি কি কোনো? আমি এই রাজবাঁধ ট্যাঙ্কার ওনার অ্যাসোসিয়েশন যেটা আছে তার সেক্রেটারি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मियों के बेरोजगार होने के कारण एक कर्मी ने मानसिक दबाव में की आत्महत्या। घटना को केंद्रित कर लोगों ने कॉर्पोरेशन के गेट के समक्ष विक्षोभ प्रदर्शन किया। 15 লাখ টাকা চাকরি দাও, আমার ছোট ছেলে কি করে খাবে? বউ বুঝে বাঁধ ভাগ বদ্ধ হয়েছে, বউ কাঁদছে না, কিছু না। যে শুনলেন যে কিছুদিন আগে আপনার স্বামীও মারা গেছিলেন। 2 মাসের মধ্যে মারা গেল। স্বামী চাকরি নাই করে, বেটার চাকরি সঙ্গে মরে গেল। সবাই জানে, গোটা গাঁ জানে। ঘুরে ছেলেটা ওই চাকরি করে ও টেনশন আছে, ভোরবেলা তো হার্ট অ্যাটাক। মেয়েটা বড় হয়েছে। তো আপনার পরিবারটা এখন কি চাই, মানে কি চাইছেন আপনি? ওই 15 লাখ টাকা চাকরি, ছেলেটা চাকরি দাও বাবা। মা বড় বিটি ছেলে আসলে। এই যে আপনারা এখন যে সেই এতে বসে আছেন, কেউ ম্যানেজমেন্ট থেকে কেউ এসেছিল বা কিছু কথা হয়েছে আপনার সাথে? পুলিশ অফিসার এসেছে, বলে আধ ঘন্টা পরে যেছে আসেনি এখনো।
ওই অফিসারে চুপ করে বসে আছে, মোড়াটো করছে বাবা, কোনো গতি হচ্ছে না, শুধু এখানে শুয়ে আছে মোড়াটো। জলদি করে তোমরা ফোন টোন করো, কিছু আমাদের কোনো গতি করবে তো করুক, নাহলে আমরা কই নাহলে এবার আমাদের সম্পত্তি আমাদের জায়গায় শালা ফ্যাক্টরি করে বসে আছে, আমাদের পাইপলাইন আমরা এবার ওদের ব্যবস্থা করবো শালা সৌর বাচ্চা। ঘটনা ঘটেছে এখানে মানে একজন তো কাজ হচ্ছে, তো এই কাজটা ছাড়াই দিলে ছেলে মেয়েরা খাবে কি, টেনশন নিয়ে নিলে। একবার ওর বাবাও টেনশন নিলে, তো ওর বাবা মারা গেল শ্রাবণ মাসে, আবার এই ছেলেও মারা গেল। তো বাবা কতদিন আগে মারা গেছে? এই শ্রাবণ মাসে মারা গেছে, 3 মাস হলো। তারপর আবার এইরকম হবে। ছেলের শরীর খারাপ হয়েছে, হয়তো দেখাই তো লাইলে পয়সা পাতি নাই হাতে, কি করবে? এত বড় পরব গেল, ছেলে পিলেকে না দিলে, জামা কাপড় না দিলে, 2 টাকা মেলা দেখতে, ওই খুব টেনশন নিয়ে নিলে, এই ছেলেটা মারা গেল। আজ কি নাম? বেলাতে হ্যাঁ, কি নাম ওনার? রাজু পাল, রাজেশ পাল। হ্যাঁ, আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাকরি চাইছি। ছেলেরা খাবে কি, মেয়ে ছেলে খাবে কি? 3টি যে মানুষ ওরা কে দেবে কদিক খেতে? হ্যাঁ, আমার ছেলের নামে আগে চায়ন করুক, তাহলে আমরা এখান থেকে মোড়া তুলব না। চাকরি চাই, হ্যাঁ, 5 লাখ টাকা চাকরি চাই। আমার স্বামী কিছু তো গতি করবে, দিতে হবে। 2 মাস আগে তো আমার স্বামী বলল, ওর বাবা চাকরি নেই করে বেচারি হাসপাতালে ইয়ের সাথে 5 বার ভর্তি হয়েছিল, বলছে হাসপাতালে ভর্তি আর হবো না, এবার চাকরিটা আমার চলে গেল। কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি, ঘটনাটা কি ঘটেছে? ঘটনাটা হয়েছে জোরে বলুন। যে 1.5 বছর থেকে, মানে 1.5 বছর 18 মাস হয়ে গেছে, মানে বোস করে দিয়েছিল আমাদেরকে একটা কোনো কারণে। ও ডিউটিতে ছিল, শিফট ডিউটিতে ছিল, বোস করে দিয়েছি, 18 মাস হয়ে গেল, ঠিক আছে। তো আজ মানে ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদেরকে একটা জয়েন করেছিল, 7 মাস ডিউটি করেছে। ডিউটি করার পরে দুর্গাপূজার আগে আমাদেরকে ফির বোস করে দিয়েছে। একটা থানাতে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, বড়বাবু সিআই ছিল, বড়বাবু ছিল, সবারই সামনে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছিল। সেই এগ্রিমেন্ট পেপার থানাতে জমা আছে। আমাদের বসার কথা ছিল, এই প্যান্ডেলটা যেটা দেখছি না, এই প্যান্ডেলটাতে বসার কথা ছিল আমাদের, কিন্তু ওরা টাইম দিয়ে যাচ্ছে, আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, অমনি টাইম দিয়ে যাচ্ছে। তো আমাদের বসার কথা ছিল, এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন হয়নি। ওরা মানে মানসিক চাপ যেটা হয় না, একটা মানসিক চাপের মধ্যে ছিল। মানসিক চাপের জন্য ওর বাবা 2 মাস, মানে 3 মাস এগুতে মারা গেছে। এই টেনশনে যে ছেলেটার আমার চাকরি চলে গেল, নিজের সম্পত্তি দিনছে, গ্যাস প্ল্যান্টকে নিজের সম্পত্তি দিনছে। এই যে পাইপলাইন গেছে, পাইপলাইনে ওর সমস্ত জমি আছে, এই 12 নম্বরে ওই জমি আছে, কিন্তু ও চাকরি করছিল 23 নম্বরে, ওকে বোস করে দিয়েছিল। এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন হয়নি। ওর নাম কি যে মারা গেছে? রাজেশ পাল। আজ যদি এখানে সংবিধান না হয়, এখন আমি জেসিবি দেখে প্রত্যেকটা পাইপ লাইনে উঠাই দেবো আমি, কারণ বাবার সম্পত্তি 12 নম্বরে এই টোটাল গ্যাস প্ল্যান্টে ওর বহু সম্পত্তি গেছে, যে মারা গেছে না, ওর গ্যাস প্ল্যান্টে বহু সম্পত্তি গেছে ওর, সব উঠাই দেবো। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সংশোধন করেনি। 7 মাস ওকে ডিউটি করিয়ে বোধে বোস করিয়ে দিয়েছে, আজ 2 মাস হয়ে গেল বোস করে দিয়েছে। 12 জনকে আমাদের জয়েন নিয়েছিল, জয়েন নেওয়ার পরে 7 মাস ডিউটি করার পরে ফির বসিয়ে দিয়েছে। আপনার নামটা বলুন। অমিত মাঝি। একসাথে চাকরি করছিলাম, কিন্তু এই আজকে এত মানসিক চাপ নিয়ে নিয়েছে যে মেয়ে বড় হয়ে হার্ট অ্যাটাক করে। আজকে দেখুন, একটা ছেলে একটা মেয়ে আর বউ, এটাই সংসার ওর। ও কিভাবে চালাবে তুমি বলো? মা আছে, কিভাবে চালাবে ও সংসারটা, কিভাবে মেনটেন করবে? বয়স্ক মা আছে, বলুন কিভাবে সংসারটা মেনটেন করবে? आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ने ग्रीन जोन क्षेत्र में अवैध होटल को बेदखल किया।
दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र को कई वर्ष पहले से ही ग्रीन जोन के रूप में चिन्हित किया जा चुका है। उनके अनुसार पूरे दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में कई लाख पेड़ लगाए गए हैं। ग्रीन जोन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे हजारों की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी कई वर्षों से उन पेड़ों की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन 3-4 सालों से ग्रीन जोन इलाके में अवैध रूप से पेड़ काटकर 2 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ होटल बनाकर शराब का धंधा चल रहा था। इसके साथ अवैध कारोबार हो रही थी। होटल के आसपास असामाजिक लोगों का अड्डा बना हुआ था। इसके अलावा भी रात के अंधेरे में लोहा कटिंग की जाती थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसकी शिकायत काफी समय से की जा रही है। पुलिस प्रशासन के पास तथा अड्डा के अधिकारियों के समक्ष दिखावे के लिए कभी काल कुछ होटलों को अड्डा के द्वारा तोड़ दिया जाता है, उसके बाद फिर ज्यों का त्यों होटल बनकर तैयार हो जाता है। इसको लेकर औद्योगिक क्षेत्र के कई सामाजिक संगठनों ने पश्चिम बर्धमान जिले के जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर उन अवैध होटलों को तुरंत खाली करने का आग्रह किया जो उन ग्रीन जोन क्षेत्रों में उग आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुर्गापुर विकास बोर्ड ने आज सुबह 10 बजे से दुर्गापुर ABL से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे 10 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। আমি মালিক এই হোটেলগুলো করোনা থেকে করোনা থেকে আমাদের কিছুই ছিল না। আমরা কীভাবে একটা হোটেল বানিয়ে কেউ 100 জন লোক এখানে কমসে কম 100 জন লোকরা কাজ করেন, তাদের পরিবার চলে, এই হোটেলগুলোকে ভেঙে দেয়। প্রতি জায়গায় এরকম হয়েছে যে এরকম ভাঙি করছে এবং এরিডিএতে বেশি করে এগুলো করা হচ্ছে। কিন্তু কেন করা হচ্ছে জানি না। সাধারণ মানুষের পেটে লাত মারা হচ্ছে, আর কিছু করছে না। সাধারণ মানুষ এবার না খেতে পেয়ে মরবে। বলছি এমন করে দিয়েছে আমাদের হোটেলগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে দিয়ে দেবে। প্রতিটা হোটেল ধুলিস্যাৎ করে দিয়েছে, আপনারা দেখতে পারেন, আপনারা ফটোতেও দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, আজকে মানুষের কিছু করতে পারছে না, তার মধ্যে কিছু মানুষ করে খাচ্ছে, সেটা কারো সহ্য হচ্ছে না। বলছি ADD এর সঙ্গে দেখা করবেন আপনারা? ADD এর সাথে আমরা অলরেডি চিঠি দিয়ে এসেছি, কিন্তু ওনাকে চিঠি দিয়ে কোনো ব্যাপার নেই, উনি এই কথা শুনছেন না। ওনারা একটা জিনিসই বোঝেন, এটা আমাদের জায়গা। হ্যাঁ, হতে পারে ওনাদের জায়গা ফরেস্টের জায়গা, ফরেস্ট নাকি ADD-কে দিয়েছে। তো ADD এর একটাই বক্তব্য যে আমাদের জায়গা যখন আমরা আমাদের দখলে রাখবো। কিন্তু দখল দেখছেন, ঠিক আছে, আপনি তো অনেক জায়গায় লিজিং দিয়েছেন, সব কিছু দিয়েছেন। যদি আপনি মনে করেন এই জায়গাটাও দেন, এখানে 100-150 পরিবার চলে, সে 100 থেকে প্রায় 150 পরিবার চলে এই হোটেলগুলো করে। ঠিক আছে, এখানে GT রোডের ওপর ধাবা কোন জায়গায় নেই, সব জায়গাতেই রয়েছে, কিন্তু আপনাদেরগুলো ভেঙে ফেলা হলো। ভেঙে ফেলা হয়েছে। আর এগুলোকে প্রতি বছর করে ভাঙা হয়, একবার করে, প্রতিটা বছর একবার করে ভাঙা হয়। এখানে প্রতি বছর ভাঙা হয়। ওই তো অন্য জায়গায় তো অবৈধ দোকান গড়ে উঠেছে বা গজিয়ে উঠেছে, সেখানে কিছু ADD ব্যবস্থা নিচ্ছে না, শুধু আপনাদেরগুলোই। সে জানি না, সেগুলো বলতে পারবো না কেন নিচ্ছে না এবং কী নিচ্ছে না কি। কিন্তু আমাদের এই জায়গা প্রতি বছর একবার করে ভাঙা হচ্ছে, প্রতিটা বছর, ইচ অ্যান্ড এভরি ইয়ার ওরা প্রতি বছর ভাঙছে। বলছি ফরেস্টকে তো দিয়ে দিয়েছে বলছে ADD। এই ল্যান্ডটা ফরেস্টের ল্যান্ড, ফরেস্ট ADD-কে দিয়েছে, এবার ADD নিজের জায়গা বলছে আমার জায়গা। বলছি ফরেস্টের সঙ্গে দেখা করবেন? ফরেস্টের লোক আসে, দেখা হয়েছে, কিন্তু ওনারা এখন এই ব্যাপারে কিছু বলবেন না। ওনারা ADD-কে দিয়েছেন, এখন ADD যা কথা হচ্ছে ADD-এর সাথে। বলছি এতগুলো মানে পরিবারের মানে এই রুটি রুজির সংসার মানে বেঁচে থাকে, তো কি করবেন এখন? এখন কী করবো? এখন আমাদের হোটেল বানাতে দেবে না বলছে, আমরা এখন কি করে বাঁচবো? এখন আমাদের পেছনে 100 পরিবার রয়েছে, তারা কি করে খাবে, কিভাবে চলবে? আজকে করোনা গেল, এই করোনা গেল, 2020 থেকে করোনা গেল, তারপর এই চালু হলো। তা মানুষের তো একটা আর্থিক সমস্যার মধ্যে মানুষ আজ 1.5 বছর ধরে রয়েছে। তার মধ্যে যদি সমস্যাটাকে সরকার যদি ইচ্ছে করে আরও বাড়িয়ে দেয়, তো সেটা তো কেউ কিছু করতে পারবে না। সেটা তো সরকারের বোঝা উচিত যে আজ 2020 সাল থেকে করোনা চলছে, আজ 1.5 বছর হয়ে গেল, কন্টিনিউয়াসলি চলেই যাচ্ছে। তার উপরে ওই মানুষের খুব কষ্ট করে দিন চালাচ্ছে, তার মধ্যেও এই হোটেলগুলো ভাঙছে। এই হোটেলগুলো জায়গাগুলো ভাঙা হচ্ছে, মানে কবে থেকে গজিয়ে উঠেছিল আর কি পরিস্থিতির মধ্যে ছিল? কিছুদিন ধরে এগুলো গজিয়ে উঠছে, মাঝে মধ্যে এগুলো ইলেকশন করা হচ্ছে। ADD আমাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে, সরকারি জায়গা, ADD ডেভেলপমেন্ট অথরিটির জায়গা, আসানসোল জেলার সেই জায়গাগুলো আমরা ইলেকশন করে পরিষ্কার করে দেবো। ADD আমাদেরকে নিয়ে এটা করছে, এবং এর সঙ্গে আমাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আছে, এটা আমাদের SDO সাহেব দিয়েছে, এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা পুরো যত রকম কর্পোরেশন, যত রকম এক্সটেন্ড হেল্প করা যায় সবই আমরা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
জ্বালা রান্নাঘরের আমি রানী আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা ময়দা সুজি বেসন ছাতু ও ডালিয়া অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया और बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी 16 नवंबर से खुल रहे स्कूल में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूल परिसर की साफ सफाई से लेकर सरकारी गाइडलाइन माना जा रहा है। इसके साथ ही सभी क्लासरूम को साफ कर दिया गया है और सैनिटाइज भी कर दिया गया है। आगामी 16 नवंबर से राज्य सरकार के आदेश के बाद सभी स्कूल कॉलेज खोल दिए जा रहे हैं, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सहित ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज खोल दिए जाएंगे। रानीगंज का सरकारी स्कूल, मारवाड़ी सनातन विद्यालय और प्राइवेट स्कूल DAV में तैयारी देखी गई। मारवाड़ी सनातन विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल परिसर में घास बड़े बड़े हो गए थे, जिसकी कटाई कर दी गई है। क्लासरूम की भी सफाई पूरी हो चुकी है और आगामी सोमवार
पूरे स्कूल में सैनिटाइज कराया जाएगा ताकि महामारी से बचा जा सके। इसके साथ ही प्रिंसिपल ने कहा कि 1.5 साल के बाद स्कूल आएंगे बच्चे, इसलिए हमारे स्कूल की तरफ से उनका वेलकम किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस पर कहा कि जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दिए गए हैं तो फिर ऑनलाइन क्लासेस करवाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के प्रभाव का भी जिक्र करते हुए कहा कि आप सभी जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस का प्रभाव बच्चों पर ज्यादा पड़ता है और ऑनलाइन क्लासेस का क्या हाल हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है। सर 16 नवंबर से सरकारी गाइडलाइन के आधार पर सभी विद्यालय खुल रही है। नवम, दसम, एकादश, द्वादश श्रेणी की रानीगंज मारवाड़ी सनातन विद्यालय में मैं हूँ इस वक्त। आप स्कूल के इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। सर, आपने अपने स्तर से क्या क्या तैयारी की है विद्यालय खुलने की? पहले हम लोगों ने जो ग्रासेस हो गए थे मैदान के अंदर, कैंपस के अंदर, उसकी कटाई की। चारों कोने के कॉरिडोर्स को, क्लासरूम की सफाई की गई। प्राथमिक तौर पर हम लोगों ने सफाई करके पूरा रख दिया है। बेंचेज वगैरह सारे पोस्ट डाले गए हैं। यूरिनल्स वगैरह साफ़ करा के, ब्लीचिंग वगैरह करवा के हम लोगों ने प्राथमिक तौर पर रेडी रखा है। कल यानी 13 तारीख को हम लोग इसका सैनिटाइजेशन, फर्स्ट सैनिटाइजेशन कल करवाएंगे हम लोग, पूरे क्लासरूम, कॉरिडोर, यूरिनल्स, ऑफिसेस। और 15 तारीख यानी सोमवार को, ऐसे उस दिन छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी हम लोग व्यवस्था रखेंगे। 15 तारीख को हमारे जो कर्मी हैं स्कूल के स्तर पर हम लोग पूरे क्लास को फिर एक बार सैनिटाइज करेंगे। जी, ये सफाई हो गई कैंपस के अंदर की। उसके बाद हम लोगों ने, सरकार के भी चिंता भावना है, डिपार्टमेंट ने भी निर्देश दिया है कि स्कूल के स्तर पर, चूँकि लड़के 1.5-2 साल के बाद आएंगे स्कूल, तो उनका एक फॉर्मल वेलकम होना चाहिए। वेलकम होम कह सकते हैं हम एक तरह से। तो इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा बुके और थोड़ी रिफ्रेशमेंट टिफिन की व्यवस्था की है। चाहे केक होंगे, चाहे चॉकलेट्स होंगे, जो भी होंगे। सर, आप अपने बच्चों को, अपने छात्रों को किस प्रकार बुलाएंगे कि कक्षा में कौन कौन से छात्र पहले दिन आएंगे, फिर दूसरे दिन आएंगे? आप लोगों की क्या ऑनलाइन की व्यवस्था है? जैसे ऑनलाइन की हम लोगों के यहाँ व्यवस्था नहीं है जी। जब क्लासेस खुल रहे हैं तो ऑनलाइन के तो हम लोगों ने मेरिट डिमेरिट्स देख लिए कि क्या होते हैं, और जिनके पास वो सारा टेक्निकल सपोर्ट है, उस तरह की सारी व्यवस्थाएं वो लोग कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा किया गया, सरकारी में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। हाँ, भले डिफरेंट चैनल से या न्यूज़ संवाद माध्यम ने जो क्लासेस ड्यूरिंग लॉकडाउन व्यवहार किए थे, उसको हम लोगों ने एक तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके सपोर्ट किया था। तो इवन दैट डिड नॉट वर्क वेल विद द स्टूडेंट्स। नहीं तो आप लोग एक साथ में एक दिन में क्या 50% छात्र को बुलाएंगे या पूरे? हम लोग छात्र 2 ही बैठाएंगे। हमारे 15 बेंचेज हैं क्लास में, प्रत्येक क्लास में, और 1-2 हॉल हैं जहां मोर देन 20 हैं। तो हम लोग 30 हैं, तो into 2 1। वहीं डीएवी स्कूल में भी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। क्लासरूम सैनिटाइज करने के साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के अलावा सभी गाइडलाइन यहां फॉलो किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन की तरफ से यह भी कहा गया कि हम लोग सिर्फ अभिभावक से निवेदन कर सकते हैं कि वे लोग बिना डरे अपने बच्चों को स्कूल भेजें ताकि उनकी पढ़ाई सही ढंग से चल सके। हम लोग किसी को भी बलपूर्वक स्कूल आने का आदेश नहीं दे रहे हैं। डीएवी की तरफ से ऑफलाइन क्लासेस के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है ताकि जो बच्चे स्कूल ना आना चाहे वे घर बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश भर में लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। राज्य में लगभग 2 साल के बाद स्कूल खोले जाएंगे, इसलिए स्कूल प्रबंधन काफी एहतियात बरत रहा है। हमारे पास जो है जो सैनिटाइजर टनल है, ये टनल द्वारा सब बच्चे लोगों को अंदर बुलाया जाएगा। ऐसे टनल है, एक ये गेट पर एक, उस गेट पर 2, और वो जो मेन गेट है उधर एक है 3। तो हर एक विद्यार्थी को ये टनल के भीतर से जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। एक एक क्लासरूम को हम स्प्रे द्वारा पूरा का पूरा स्कूल हम सैनिटाइज कर रहे हैं जी। हाँ, ये लगातार सिलसिला हमने पिछले 4-5 दिन से शुरू किए हैं जी। आज भी हुआ है, कल भी होगा, और मंडे तो स्पेशल सैनिटाइजेशन होगा क्योंकि मंगलवार से स्कूल खुलने का। सर, आपके यहाँ पूरे सरकार का जो गाइडलाइन है 9, 10, 11, 12, तो आप भी इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 4 क्लास ही शायद बुला रहे हैं। 9, 10, 11, 12।
चारों क्लास को हम बुला रहे हैं। हाँ। आधा स्टूडेंट्स को हम ऑफलाइन क्लास के लिए बुला रहे हैं, बाकी आधा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास। मतलब मान लीजिए मैं एक क्लास में पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ दोनों क्लास चलेगा, एक तो ऑनलाइन एक ऑफलाइन। आधा स्टूडेंट जो फिजिकली प्रेजेंट रहेगा क्लास में, बाकी जो 50% स्टूडेंट्स वो घर में बैठ करके ऑनलाइन भी क्लास अटेंड करेगा। सर 50% स्टूडेंट में आप कितने बच्चों को बुला रहे हैं अपने एक क्लास में 40 बच्चे हैं जी, तो 40 में से हम लोग 20 को बुलाएंगे जी, और 20 को घर में रहेंगे वो लोग, वो ऑनलाइन करेंगे, फिर उसको सेकंड डे आप उसको बुलाइएगा। 20 बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लास अटेंड करेंगे। सर आप लोग अगर किसी बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तुरंत तो हम लोग उसके लिए आप लोग उसके लिए आइसोलेशन रूम हमारा पास है जी, वो हमने अलग से रखे हैं। उधर एक बिस्तर भी है, सब कुछ उधर है। तुरंत हम यहाँ नजदीक जो हॉस्पिटल जो है आई हॉस्पिटल के साथ हम लोग का एग्रीमेंट हो चुका है जी। अगर ऐसे परिस्थिति में हम लोग तुरंत स्टूडेंट्स को पास उधर ले जा सकते हैं, नहीं तो कम से कम डॉक्टर लोगों को बुला करके यहाँ इलाज करा सकते जी। आपके यहाँ क्या नर्स उर्स की भी व्यवस्था आपने किया है क्या? नर्सिंग का जी, नर्स का जैसे बहुत सारे कलकत्ता में देखा जा रहा है कि वो आपने आइसोलेशन रूम का तो व्यवस्था किया ही है और एक्स्ट्रा 1-2 नर्स का भी उन लोगों ने व्यवस्था किया है कि अगर कुछ समस्या हो तो। ये जो है हमारा जो डीएवी स्कूल और इन नज़दीक जो आई हॉस्पिटल दोनों ही लाइन्स का है जी, तो हम लोग का एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। उसके हिसाब से जब भी कोई ऐसे हालत, अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो तुरंत हम डॉक्टर लोगों को और हॉस्पिटल नर्स लोगों को तुरंत बुला लेंगे। और ये देखिए जो हॉस्पिटल है नेक्स्ट बिल्डिंग पर है, स्कूल का पास जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वही है आई हॉस्पिटल। सर आप लोग अपने स्टूडेंट को सूचित किस प्रकार कीजिएगा कि आज आप लोगों को आना है, आप लोगों को आना है? नहीं, हमने बहुत पहले से हम लोग बता दिए हैं बच्चे लोगों को। मान लीजिए जैसे कि एक दिन ऑड नंबर, जितने ऑड नंबर है ऑड नंबर, आधा स्टूडेंट्स ऑड नंबर एक दिन आएंगे, नेक्स्ट दिन इवन नंबर बच्चे लोग आएंगे, ऐसे करके ऑड और इवन नंबर के कॉम्बिनेशन से बच्चे लोग हम बुलाएंगे। तो सर अप्रोक्सीमेट 9, 10, 11, 12 में कितने छात्र आपके उपस्थित रहेंगे? क्लास एक दिन में कितने रहेंगे? एक सेक्शन में एक सेक्शन में हम लोग का एवरेज जो अटेंडेंस है 50+ अटेंडेंस है, उनमें से हम 25 बच्चे 50% स्टूडेंट्स को बुलाएंगे, मतलब 25 से ज़्यादा नहीं। और एक क्लासरूम में हम बिठाएंगे। सर आपके सेक्शन भी तो कई होंगे? हाँ, एक सेक्शन का जो है 12 स्टूडेंट्स को हम एक क्लासरूम में बिठाएंगे जी जी जी। क्योंकि हमारे पास 24 बेंचेस है एक क्लासरूम में, हम 24 को नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक बेंच पर एक बच्चा और नेक्स्ट बेंच को खाली रहेगा। अच्छा, एक बेंच पर आप एक ही बच्चे को बैठाएंगे? रहेगा हाँ जी जी जी। हम आपको रूम दिखा सकते हैं, इधर कितने सारे रूम्स हैं। ठीक। आप आइए। देख रहे हैं कि 16 तारीख से 16 नवंबर से विद्यालय खुल रही है। रानीगंज डीएवी स्कूल में मैं इस वक्त आपके साथ हूँ। देख रहा हूँ कि लगभग जो सरकारी जो गाइडलाइन है उसका आप लोगों ने पूरी तरह से फॉलो किया है। तो बच्चों को किस प्रकार आप लोग इस कक्षे में बुलाएंगे सर, इसकी क्या प्रारूप है आप लोग? सबसे पहले तो हम पेरेंट्स लोगों के पास गुजारिश करेंगे जो उन लोग बिना डरे बच्चे लोगों को भेजें। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, जिस स्कूल आना ही है हम सब ये बोलेंगे आप बिना डर के इधर स्कूल में भेजिए बच्चे लोगों को। यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए सब कुछ प्रबंध किया हुआ है जी। चाहे वो सैनिटाइजर टनल हो, बीच बीच में पूरा रूम स्प्रे होना चाहिए, सब कुछ इधर तैयारी हम लोग करके रखे हैं। पेरेंट्स लोगों से विनती करके हम यही बोलना चाहते हैं, पेरेंट्स लोग बिना डरे बच्चे लोगों को आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, हम मजबूर नहीं कर रहे, हम गुजारिश कर रहे हैं बच्चे पेरेंट्स लोगों को। सर आपका नाम? मेरा नाम है प्रताप कुमार आदित्य। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। साहिबाबाद इलाके में नशाखोरों और चोरों के आतंक से परेशान लोगों ने गुरुवार शाम जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पकड़े गए एक चोर को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं चोर की माने तो बंस कंपनी से ये लोग माल की चोरी नहीं करते हैं बल्कि माल खरीद कर बेचते हैं। अब यहाँ सवाल बंस कंपनी पर भी उठ रहा है कि आखिर वहाँ प्रबंधन कैसा है। रानीगंज के साहिबाबाद इलाके में चोरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चोरों के आतंक से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने विगत गुरुवार रात जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बंस कंपनी से चोर दिन रात माल की चोरी कर बेचा करते हैं और ये सारा चोरी किया हुआ माल साहिबाबाद इलाके से होकर गुजरता है। गुरुवार रात भी चोर टीना लोहा लेकर साहिबाबाद इलाके से गुजर रहा था, तभी स्थानीय एक व्यक्ति ने उसे टोका। इसके बाद तो उसने उल्टा उस व्यक्ति पर ही हमला कर दिया। चोर द्वारा हमला किए जाने के बाद स्थानीय लोग गुस्से से भर उठे और वहां से गुजर रहे 3 चोरों को धर दबोचा।
लेकिन 2 चोर भागने में कामयाब रहे, जबकि तीसरे चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी इस बारे में चोरों को फटकार लगाई जाती है तो वो उल्टा ये कहते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की है, बल्कि बंस कंपनी से माल खरीद कर बेच रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर बंस कंपनी से चोर खुलेआम कैसे लोहा और टीना की चोरी कर सकते हैं, और अगर उनकी बात सच है तो फिर जरूर इसमें किसी की मिली भगत है, तभी माल वहां से उठाकर ये चोर बेचा करते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इलाके में नशाखोरी भी काफी बढ़ चली है। जल्द ही उस पर लगाम नहीं लगाया गया तो पूरे इलाके में नशाखोरों और चोरों का अड्डा हो जाएगा। এইভাবে এটা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে লোহা বালান্স কোম্পানি চোরটা ধরলাম, চোরটা ধরে কি বলছে কি আমি কেন চুরি, আমি তোমাদের কিনে নিয়ে আসছি, ওখান থেকে রোজ হচ্ছে, ওখানে লরি লরি পাচার হচ্ছে, ওখানে পুরো লরি লরি পাচার পায় ও বলা ডেলি এদিক দিয়ে এরকম নিয়ে যাওয়া হয়, শুধু রাত্রে নয়, দিন দুপুর রাত্রি সব সময় দিনও নিয়ে যায়, সব সময় যাচ্ছে, সব গাঁজা প্রচুর কাজ হয় এই আমগুলো মাঠে। এক মিনিট মানে নেশা খুব পরিমাণে বেড়ে গেছে এবং চুরি চামড়িও চলছে। পরিমাণ বেড়ে গেছে, বন্ধ করতে চাই, আমাদের বন্ধ চাই, শান্তি থাকতে চাই। আমরা সাইবান পাড়ার এখানটা একদম এই জায়গার নাম কি? সাইবান জায়গাটার নাম তিন মাথায় করে নিয়ে আসছিল, তিন আর কি ছিল এর মধ্যে লোহার অ্যাঙ্গেল দেখা যাচ্ছে। লোহা ছিল, তিনজন ছিল। বলে এই তো রাস্তা इधर से खा ले यारा, बोले तुम्हारा बाप का रास्ता है। কোন জায়গা থেকে নিয়ে আসছে বলে জানেন? কারণ কোম্পানি থেকে এই রাস্তা থেকে আসছিল। আচ্ছা, তিনটা এমনি গায়ের উপর ছুড়ে দিল, আমি মেয়েটাকে বলে নিয়ে তখন খাবার খেয়ে ঘর থেকে বেরাইছি। আচ্ছা, এরকম কি প্রতিদিন নিয়ে আসা যায়? ডেইলি তিনটা এমনি গায়ের উপর ছুড়ে দিল, আমি মেয়েটা গেলে এমনি ঘুরে গেলাম, মাথাতে লাগলো আমার, পাটাতে লাগলো, फिर আমি একে নামালাম, ততক্ষণে সাক্ষী কাকু দৌড়ে আসলো, আমার মেয়েটাকে ধরলো, তবে আমি ওই ছেলেটাকে ধরলাম, ওই ছেলেটা ছিল আর দুজন আরো ছিল, পালাই গেল। আচ্ছা, যাকে ধরলেন সে এখন কোথায়? পুলিশ নিয়ে গেল। পুলিশ এসেছিল ঘটনা? হ্যাঁ, পুলিশ অনেক লেটে এসছে, ডেইলি এই কাজ হচ্ছে, ডেইলি কাজ হচ্ছে, ডেইলি লোহা টিনা ডেইলি বাগান কোম্পানি এই রাস্তা হয়ে গেছে এটা, এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে লোহা টিনা ডেইলি, কোনো দিন বাদ নাই। কালকে এখানে বাইক চুরি করছিল আমাদের গলিতে, 3টে ভোরবেলায় দুজনে ছেলে ছিল। কালকে আমি সব পুজো ভাড়া যাচ্ছিলাম, ঘুম থেকে উঠলাম, আমি দেখলাম দুজনে ছিল, একজন বাইক স্টার্ট করেছিল আর একজন ওখানে দাঁড়াই ছিল। আমি বেরোলাম, দরজা খুলে তৎক্ষণ দৌড়ালাম, আমি ইটা নিয়ে দৌড়ালাম, বাইক স্টার্ট করে পালাই গেল। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় চুরির ঘটনা প্রায় ঘটছে এখানে, ডেইলি কোনো দিন বাদ নাই, ডেইলি। কি চাইছেন আপনারা প্রশাসনের কাছ থেকে? কি চাইছেন? এদেরকে এই রাস্তাটা ছাড়তে হবে, এখানে চুরি চামারির জায়গা নাই, এখানে সব ছেড়ে মানুষ খায়, এখানে চুরি চামারির জায়গা নাই। পুলিশ কোনো এর জন্য পুলিশ কোনো কিছু করে না। আমি নিজে মেয়েকে নিয়ে খাবার খেয়ে ঘর থেকে বেড়াইছি, কিন্তু আমার বারণ কোম্পানি আমার গায়ে চুরি দিচ্ছে, বলছে আমি দেখেন। কি নাম আপনার? নাম চন্দন সাউ। জায়গাটার কি নাম? साहिबान पाड़ा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।